Hello, friends. Welcome to another inspiring weekly dose of your most favorite podcast channel, Vision 100. जहाँ पर हम लोग बात करते हैं about all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model. जहाँ पर we could get the time, money and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. Friends, as we mentioned in the last podcast episode, जैसा कि हम लोगों ने बताया था पिछले अपने एपिसोड में, that we'll be covering a very important topic this time, how lady entrepreneurs can improve themselves. किस प्रकार से वो अपने आप को बेहतर बनाएं, they can do their self development, avoid any of the mistakes जो कि normally होती हैं, so that they can build a business and family and a happy life. और ये टॉपिक इतना important है कि I wanted to bring the best speaker this time. And nobody is more qualified to talk about this than my wife Tanya, because not only is she very successful as a businesswoman, she has practical experience dealing with lady entrepreneurs across many countries. In any topic, she is the master. So help me welcome my beautiful, wonderful wife, Tanya. Thank you, Sumit. Right now we will talk about the ladies. Women has lots of power in them. They not only create the life and nurture the life, they give the compassion and love. Mother love is the purest and the strongest out of all affections in this universe. Ladies में बहुत पावर, बहुत शक्ति होती है. वे ना केवल जीवन बनाती हैं और जीवन का पोषण करती हैं, वे करुणा और प्रेम देती हैं. एक माँ का प्यार इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में सबसे प्योर और सबसे मजबूत होता है. Women are the special God creations. As mothers, they are the source of creating life by itself. They are the source of emotion, taking care of all the humanity. महिलाएं बहुत ही खास भगवान की रचनाएं होती हैं. माँ के रूप में वे स्वयं जीवन बनाने का स्रोत हैं. वे पूरी मानवता, ह्यूमैनिटी की भावनात्मक, इमोशनल देखभाल का भी स्रोत हैं. Through the social bonding, they are the link between man, family and society. लेडीज सामाजिक बंधन के माध्यम से पुरुषों, परिवार और समाज के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी होती हैं. When women utilize their woman power properly, their man, their family, the whole society around them get transformed. जब महिलाएं अपनी नारी शक्ति का सही उपयोग करती हैं, तो उनके पुरुष, उनका परिवार और उनके आसपास का पूरा समाज ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है. Even though women often complain that their husbands are not doing things properly for them, but they forget that the men also have needs and the women have also their own faults. हालांकि लेडीज अक्सर शिकायत करती हैं कि उनके पति उनके लिए ठीक से काम नहीं कर रहे, लेकिन वे भूल जाती हैं कि पुरुषों की भी अपनी ज़रूरतें होती हैं और महिलाओं के भी अपने दोष होते हैं. Since they have this power within them to deeply affect the people around them, so they have to take care responsibility of their own action, word, situation and should not blame others. चूँकि लेडीज के पास ये पावर होती है, शक्ति होती है कि वे अपने आसपास के लोगों को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए उन्हें खुद अपने काम, अपने शब्दों और अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए. If something in your life is not going the way you want, you're unhappy, then don't wait for miracle. You have to be bold, proactive and change your situation by yourself. अगर आपके जीवन में कुछ भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है और आप दुखी हैं, तो किसी चमत्कार की या मिरेकल की प्रतीक्षा ना करें. खुद आपको साहसी बनना होगा और अपनी स्थिति स्वयं ही बदलनी होगी. I want again to bring up the old wise saying that the woman can make a man or break a man. She can
create the family or break the family. You have to choose who you are, a breaker or a maker. तो यहाँ मैं फिर से एक पुरानी कहावत को सामने लेके आना चाहती हूँ कि एक महिला अपने आदमी को बना सकती है या अपने आदमी को तोड़ सकती है। वह एक परिवार को भी बना सकती है या फिर परिवार को तोड़ सकती है। और ये आपको चुनना होगा कि आप कौन हैं। आप ब्रेकर हैं या मेकर हैं, आप बनाने वाली हैं या तोड़ने वाली हैं, ये आपको चुनना होगा। So here I want to give you some points about how women can avoid making mistake, create happiness for themselves and for those around them. इसलिए अब मैं यहाँ कुछ खास पॉइंट्स देना चाहती हूँ कि कैसे महिलाएं गलतियाँ करने से बच सकती हैं और अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी पैदा कर सकती हैं। Sometimes women come from more successful educated family. As a result, she becomes successful very fast. In this case, don't try to overshadow your husband or remind him about it, because it will make him feel that you are not respecting him. कभी कभी महिलाएं अधिक सफल और ज़्यादा शिक्षित क्वालिफाइड परिवार से आती हैं। परिणाम स्वरूप वह बहुत जल्दी सफल हो जाती हैं या फिर उन्होंने ज़िंदगी में अधिक सफलता देखी हुई होती है। तो इस मामले में वह अपने पति पर हावी ना हो जाएं या उन्हें इसके बारे में बार बार याद दिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे उनके हस्बैंड को ऐसा लगेगा कि आप उनका सम्मान नहीं करती हैं। Your goal is to help your husband to grow. Try to make your husband feel that you love and respect him for whatever he is owning and doing for your own family. आपका गोल, आपका लक्ष्य अपने पति को आगे बढ़ने में मदद करना है। अपने पति को हमेशा ये महसूस कराने की कोशिश करें कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं और वह जो कमा रहे हैं और आपके लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उसे आप कितना अप्रिशिएट करती हैं, कितना प्राउड फील करती हैं और उसके लिए उनका सम्मान करें। Your goal not to be the star in your family, but to make your family as a star family. आपका लक्ष्य अपने परिवार में खुद स्टार बनना नहीं है, बल्कि अपने परिवार को एक स्टार परिवार बनाना है। Number 2, never have this attitude that my way is the best and the husband has to be always in my control. In this case, not only your husband, but also you will not get proper respect in society. कभी भी ये रवैया ना रखें कि मेरा रास्ता सबसे अच्छा है और मेरे पति को हमेशा मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, वो मेरे इशारों पे हमेशा चले। यदि ऐसा एटीट्यूड, रवैया रहेगा तो फिर ना सिर्फ आपके पति बल्कि आपको भी बाहर समाज में कभी भी उचित सम्मान नहीं मिल पाएगा। Number 3, if you don't like some people around your husband, by criticizing them, I don't like your sister, I don't like your friend, it will not help. Just learn how to tolerate them, set some boundaries around them slowly. यदि आप अपने पति के आसपास कुछ लोगों को पसंद नहीं करती हैं तो उनकी निंदा आलोचना करके कि मुझे आपकी बहन पसंद नहीं, मुझे आपका फलाना दोस्त पसंद नहीं है, ये आपको बिल्कुल मदद नहीं करेगा। बस आप उन्हें सहना सीखें और धीरे धीरे पेशेंटली उनके चारों तरफ कुछ सीमाएं निर्धारित कर दें, जिससे वो लोग अपने आप ही आपसे दूर होते चले जाएंगे। Number 4, always keep reminding your husband that he is the best, because power in your words, your faith in him will make your husband the best. Remember, woman has the power to make or break her husband. अपने पति को हमेशा याद दिलाते रहें कि वह सबसे अच्छे हैं, क्योंकि आपके शब्दों की ताकत और उन पर आपका विश्वास वही आपके पति को सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट बना देगा।
हमेशा याद रखिए कि औरत के पास अपने आदमी को बनाने या तोड़ने की ताकत होती है। Learn what personality type he has and understand why he is behaving the way he does. This way you will not be frustrated. Also important to know his love language, what he like, make his favorite dish and wear the perfume he likes, etc. ये जाने कि आपके हस्बैंड का किस प्रकार का व्यक्तित्व है, उनका क्या पर्सनालिटी टाइप है, और समझें कि वह जिस भी तरह से व्यवहार करते हैं वो ऐसे क्यों करते हैं। इस तरह से आप उनसे कभी भी निराश या फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी। उनकी लव लैंग्वेज, उनकी प्रेम की भाषा जानना भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि उन्हें क्या पसंद है, उनकी क्या पसंदीदा डिश है, खाना है उसे बनाएं, या जिस तरह के कपड़े वो चाहते हैं कि आप पहने, या जिस प्रकार का परफ्यूम उन्हें पसंद है वो लगाए, वगैरह वगैरह। Number 5. Don't ever correct your husband in front of other people. Even if he is wrong, which is difficult, but correcting him in front of people would embarrass him. They will make some comments, laugh at him, and your husband definitely will be hurt. कभी भी अपने पति को दूसरों के सामने ठीक ना करें, भले ही वे गलत क्यों ना हो, जो कि मुश्किल होता है, लेकिन और लोगों के सामने उन्हें करेक्ट या ठीक करने से उन्हें शर्मिंदगी होगी, और जिससे आसपास के लोग जो होंगे वो भी कुछ ना कुछ टिप्पणी करेंगे, उन पे कमेंट्स मारेंगे, उन पे हंसेंगे, और फिर इस सब से आपके जो पति हैं निश्चित रूप से उनको हर्ट फील होगा, बुरा लगेगा। Remember, no one is perfect. You are also not perfect. Learn to accept and overlook some of his mistakes instead of constantly try to fix them, neither in private and definitely not in public. याद रखिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, आप भी परफेक्ट नहीं हैं। लगातार उनकी कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखिए और उन्हें नज़रअंदाज करना सीखिए। कभी भी उन्हें टोकने की या ठीक करने की कोशिश ना करें, ना तो निजी रूप में और ना ही लोगों के सामने पब्लिकली। Number 6. Don't be in complaining mode or fault finding all the time. Like saying, you don't do this properly, why you cannot be more like our upline, etc. हर समय शिकायत करने या दोष ढूंढने के मूड में ना रहें, जैसे कि आप ये ठीक से नहीं करते हैं, या आप हमारे अपलाइन की तरह क्यों नहीं बन सकते, वगैरह वगैरह। Never compare him with others in his personality, behavior or success. All of us grow and change with time and environment around us. कभी भी अपने पति की तुलना दूसरों से उनके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यवहार या सफलता में कभी ना करें। हम सभी समय और वातावरण, एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। Number 7. All of us have good days and bad days. But it does not mean that it's okay to throw tantrums and be too aggressive. If something makes you angry, don't carry it overnight. Make peace before going to sleep. हम सभी के अच्छे और बुरे दिन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नखरे करने लगे हम लोग या फिर बहुत ही आक्रामक या एग्रेसिव हो जाएं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ गुस्सा दिलाती है तो उसे रात में सोने से पहले ठीक कर लें और शांति बना लें सोने से पहले। अगले दिन तक कैरी ओवर करके ना लेके जाएं उसे। Never discuss anything unhappy in front of the children. They will duplicate everything whatever they see or hear. This way we are directly responsible for their future success or failure. बच्चों के सामने कभी भी दुखी होने पर कोई भी चर्चा या डिस्कशन ना करें। बच्चे जो भी कुछ देखते हैं या सुनते हैं वो उसी की नकल करेंगे, और इस तरीके से हम उनके आने वाले भविष्य की सफलताएं और उनकी विफलताएं दोनों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हो जाते हैं।
Number 8, don't give your husband a silent treatment or ignore him. Men don't like when we ignore them. If you want to be alone for some time, go into the garden or terrace, pretend that you're doing something alone, or sit and do some meditation, but don't sit around your husband waiting to be alone or keeping yourself. कभी भी अपने पति को साइलेंट ट्रीटमेंट यानी मौन उपचार ना दें, उन्हें इग्नोर या अनदेखा मत करें, क्योंकि जब हम उन्हें अनदेखा करते हैं तो हस्बैंड्स को, पुरुषों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अगर आप किसी भी वजह से अकेले रहना चाहती हैं तो उस वक़्त गार्डन में चली जाएं या छत पे चली जाएं या अकेले कुछ काम करने का बहाना सा बना लें। आप चाहें तो अकेले ध्यान में भी बैठ सकती हैं किसी जगह पे, लेकिन अपने हस्बैंड के आसपास बिल्कुल मत बैठिए जब आपका बिल्कुल अकेले रहने का मन है या आप बिल्कुल ही मौन रहना चाहती हैं, किसी से बात करने का आपका मन ना हो रहा हो। Number 9, men like to solve problems and women like to share their own problems. If you only share your problem expecting him to listen like your best friend, it will not happen. So understand that sometimes you can share some periodically your challenges which he can solve. This way he will also feel good about it. पुरुषों को समस्याओं को हल करना पसंद आता है और महिलाओं को समस्याओं को शेयर करना, साझा करना, उनके बारे में बात करना पसंद आता है। लेकिन यदि आप केवल अपनी समस्याओं को अपने पति के साथ शेयर करना चाहती हैं और ये उम्मीद रखें कि वो आपसे आपके अच्छे दोस्त की तरह केवल उसे सुनेंगे, तो ये कभी नहीं होगा। तो इसके बजाय ये अच्छा है कि समय समय पर आप कुछ अपनी समस्याएं अपने हस्बैंड के सामने लेके जाएं और उनके साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जिससे वो सुलझाएंगे आपके लिए, और ये करने से उन्हें भी बहुत अच्छा महसूस होगा, फील होगा। Number 10, don't try to know everything what is going on. Sometimes husband want to be left alone, so you should know when to ask and when to keep quiet. Everybody needs to have their own space. सब कुछ जानने की कोशिश मत कीजिए कि क्या हो रहा है। कभी कभी हस्बैंड अकेले रहना पसंद करते हैं या चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कब उनसे पूछना है और कब चुप रहना है। हर किसी को अपना स्पेस चाहिए होता है। Also, don't be overly suspicious of your husband. Learn how to trust him. Otherwise, he will not be able to do any of his work properly. If you constantly calling him, try to find where he is and what he is doing. Also, आप अपने पति पर बहुत ज़्यादा संदेह मत करें, उन पर भरोसा करना सीखिए, नहीं तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर आप उन्हें लगातार बार बार कॉल करके ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो उनका काम ठीक से नहीं हो पाएगा, काम का हर्जा होगा। Number 11, remember that the main responsibility of the woman is to create happy family, raise happy, healthy, well-adjusted, smart children. Don't forget to enjoy your motherhood. याद रहे कि एक महिला की मुख्य जिम्मेदारी एक खुशहाल परिवार बनाना होता है, और वो एक खुशहाल, स्वस्थ, अच्छी तरीके से एडजस्टेड, स्मार्ट बच्चों का पालन पोषण करे। ये उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे अपने मदरहुड, मातृत्व की खुशियों के बारे में भूलना नहीं चाहिए और उन्हें एंजॉय करना चाहिए। Your responsibility is to present a happy marriage in front of your children and show them your success as a wife. Don't be a helicopter mom hovering over your children all the time. They also need their own space and time to grow by having their own experiences and create their own success stories.
आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के सामने एक खुशहाल शादीशुदा वैवाहिक जीवन जो है उसे पेश करें और उन्हें एक पत्नी के रूप में सफलता कैसे मिलती है वह दिखाएं। बच्चों के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मॉम बन के हमेशा मंडराते ना रहें, क्योंकि बच्चों को भी अपनी पर्सनल स्पेस और अपना पर्सनल टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें भी ग्रो करना है और अपने खुद के अनुभव और अपनी खुद की सफलता की कहानियों को बनाना है। That is why our Amway business is so important, because it allows women to create their own success stories and earn the respect of their children and make their own family as a star family. और यही कारण है कि हमारा एमवे बिजनेस इतना महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह महिलाओं को अपनी खुद की पहचान, खुद की सफलताओं की कहानी बनाने में मदद करता है और अपने बच्चों का सम्मान, उनका रिस्पेक्ट अर्न करने का, पाने का एक जरिया देता है और इस प्रकार वो अपने परिवार को एक स्टार परिवार के रूप में बना लेती हैं। It's great talking to all of you, and this is for now, for today, and next week we'll talk about the family relationship. Bye for now. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कपल्स की रिलेशनशिप्स के बारे में। So take care and love you all. See you next week.